آپ کو بتائیں کہ وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ نے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست پر بی ایم جی گروپ کے عاطف اکرام 260 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سینئر نائب صدر کی نشست پر یو بی جی کے فیاض مگو 235 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ نے میدان مار لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے کاوش میمن سے۔ کاوش بتائیے گا۔ آپ دیکھیں ایف پی سی سی آئی کے انتخابات میں یو بی جی گروپ نے میدان مار لیا ہے اور خواتین کی نشست پر گروتھ لین کامیاب ہوئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا کامیابی حاصل کی ہے، کیا کہیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی شکر گزار ہوں اور میں اپنے گروپ یو بی جی پروگریسو اور بی ایم پی الائنس کی بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے نامینیٹ کیا۔ میرے ای سی اور جی بی ووٹرز جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے اور میرے گروپ کو کامیاب کیا، میں ان سب کی اور بزنس کمیونٹی کے بھرپور ہم پہ اعتماد کی بے حد شکر گزار ہوں۔ ترجیحات ہوں گی کیونکہ خواتین کی امپاورمنٹ کو فوکس کیا گیا، کیا ترجیحات ہوں گی آپ؟ جی دیکھیں، خواتین جو ہیں وہ پاکستان کے 52% پاپولیشن کا حصہ ہونے کے باوجود جو ہے ان کی انٹرپرینورشپ میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ لیس دین 1% ہے، اور ہم ہمیشہ جب پاکستان میں اکنامک چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ جب تک خواتین اس اکنامک پارٹ کا حصہ نہیں بنیں گی تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا۔ تو ہمیں ایز آف بزنس کرنا ہے خواتین کے لیے، اور خواتین چیمبر میں جو سب سے بڑی کمی میں دیکھتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے فیصل آباد ویمن چیمبر میں بھی ایز پریزیڈنٹ سرو کیا، تو انٹر بٹوین دا ویمن چیمبرز ڈسکنیکٹ بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنا ہے، ہمیں ان کی سسٹینیبلٹی پہ کام کرنا ہے، ہمیں خواتین کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کے اندر لے کے آنا ہے۔ جو ہماری چھوٹے کاروباری طبقے کی خواتین ہیں، ہمیں ان کی کلسٹر فارمنگ کر کے ان کو اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرانا ہے۔ یہ ہماری بہت زیادہ پریورٹی ایریاز ہیں اور یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، بیکاز یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ویمن مینیفیسٹو 14 نکات پہ مشتمل ہم نے بنایا ہے، جس میں ہم نے خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگلے 5 سال کے لیے اپنا لائے عمل ایز یو بی جی بزنس گروپ اینڈ بی ایم پی پروگریسو ہم نے اپنا ڈیفائن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک کی خواتین کے لیے، اپنے سارے صوبوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوششیں جو ہیں اپنی پوری سروس۔ بالکل دیکھیں، یو بی جی گروپ نے کامیابی حاصل کی اور اس وقت بھرپور انداز میں فیڈریشن ہاؤس میں جشن منایا جا رہا ہے۔ جی، وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ نے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست پر بی ایم جی گروپ کے عاطف اکرام 260 ووٹ لے کر کامیاب۔ سینئر نائب صدر کی نشست پر یو بی جی کے فیاض مگو 235 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں، اور یہ جشن بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ نے میدان مارا ہے، جبکہ صدر کی نشست کی اگر بات کریں تو بی ایم جی گروپ کے عاطف اکرام 260 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اسی طرح سینئر نائب صدر کی نشست پر یو بی جی کے فیاض مگو 235 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں، اور اس وقت جشن منایا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ بزنس گروپ نے میدان مار لیا اور اس وقت ان کی جانب سے جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے کاوش میمن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاوش سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ کاوش بتائیے گا کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ بالکل دیکھیں، یو بی جی نے اس وقت جو ہے وہ کامیابی کا جشن منانا شروع کر دیا اور یقیناً جشن ہوگا بھی، کیونکہ یو بی جی کو یہاں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس مین پینل کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور 4 سال بعد جو ہے وہ یو بی جی کو ایک بار پھر یہاں پر اقتدار ملا ہے، اور یقیناً جو اقتدار کی جنگ تھی وہ اس میں یو بی جی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سینئر نائب صدر اور نائب صدر کی نشستوں پر بھی جو یو بی جی کے امیدوار تھے وہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے ساتھ بزنس پینل کی، تو ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ بزنس مین پینل جو بلوچستان اور کے پی کے کی نشستوں پر ضرور کامیاب ہوا ہے، لیکن جو اکثریت میں نشست ہیں وہ یقیناً یو بی جی کو حاصل ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بھرپور جشن ہی منایا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے خطاب کرتے ہوئے احسن تنویر کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے انڈسٹریلسٹ کے، ان کو حل کیا جائے گا اور ان کی آواز کو حکومت تک پہنچایا بھی جائے گا، اور خراج تحسین پیش کیا گیا احسن منیر کو، ان کی خدمات کو سراہا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بزنس کمیونٹی کا مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اور سوال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا دن جو ہے وہ آج بھرپور تعداد میں یہاں پر لوگوں نے شرکت کی، اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ ملک کی سب سے بڑی باڈی ایف پی سی سی آئی، تو یقیناً یہاں پر لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں انتخابات کے حوالے سے، چاہتے ہیں کہ وہ لوگ منتخب ہو کے آئیں جو عوام کے، جو یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے مسائل کو حل کر سکے۔ تو یقیناً لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کا نتیجہ بھی یہی آیا ہے کہ ان کی ووٹ کی امنگوں پر پورا اترتے ہوئے یو بی جی نے یہاں پر کامیابی حاصل کی۔ حنیف گوہر ہو، خالد ثواب ہو،
दीगर लोगों ने भी खिताब किया, अहमद चुनाई ने भी खिताब किया और यही मुबारकबाद भी दी है वोटर सपोर्टर्स को, और कहा भी है कि यकीनन उनके मसाइल को भी हल किया जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरा दिन जो है हमने देखा कि दोनों ग्रुपों के जो पैनलिस्ट हैं उनके दरमियान गेमा गेमी भी दिखाई दी और ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ। यकीनन यहाँ पर पुलिस की बात की जाए, रेंजर्स की बात की जाए, सिक्योरिटी के हवाले से जो अच्छे इंतजाम देखने को, और खवातीन की नशिस्त पर देखा जाए तो वहाँ पर भी जो यूपीजी की कुर्रतुलैन है उनको कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने भी कहा कि खवातीन के हवाले से जो इकोनॉमी में जो इश्यूज हैं उन मसाइल हैं उनको आगा इस हवाले से यूपीजी अपना एक अहम किरदार अदा करेगी और एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को आया है कि ओवरऑल एक अच्छा तासुर मिला है आज के इंतखाबात को। जी, वफाकी ऐवान सनत और तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मैदान मार लिया और इस वक्त आप देख सकते हैं जश्न मनाया जा रहा है। सदर की नशिस्त की अगर बात करें तो पीएमजी ग्रुप के आतिफ अकराम 260 वोट लेकर कामयाब हुए। इसी तरह सीनियर नायब सदर की बात करें तो उसकी नशिस्त पर यूबीजी के फयाज मगो 235 वोट लेकर जीत गए। काविश, इनके मसाइल के हवाले से भी बताइएगा। काविश मेमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि वफाकी ऐवान सनत और तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मैदान मारा है और अगर हम सदर की नशिस्त की बात करें तो बीएमजी ग्रुप के आतिफ अकराम 260 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। काविश मेमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। काविश, इनके मसाइल के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखें इंडस्ट्रीज के बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है, बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं। अगर बात की जाए सीधा नुकात की तो यकीनन उसमें इंटरेस्ट रेट का एक बहुत बड़ा मसला है जो शायद 22% पर है। इस हवाले से जो सनतकार है वो कहते हैं कि इसको कम होना चाहिए क्योंकि 22% के शराय सूद पर कारोबार करना इंतहाई मुश्किल है और यही वजह है कि हमने माजी में देखा कि उन्होंने इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया और अब हम ये देखें कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी और गैस के हवाले से भी मसाइल हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। इस हवाले से हुकूमत का तो कहना है कि वो मजबूर है क्योंकि IMF की तरफ चढ़ाई थे उसको भी पूरा करना है, लेकिन जो सनतकार है वो कहते हैं कि तमाम तर जो बोझ है वो इंडस्ट्री पर डाला जा रहा है और तमाम तर मुश्किलात की वजह से मकामी इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल तर होता जा रहा है। उस हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जाता है। तो इस हवाले से भी जो यूबीजी है उसका ये मौक़िफ़ है कि इन मसाइल को भी हुकूमत के सामने रखा जाएगा और दरख्वास्त की जाएगी कि जो सनतकार है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके मसाइल को हल किया जाए। तो यकीनन हम देख रहे हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उसको उम्मीद की किरण पैदा हो रही है कि यकीनन उनके लोग अब मुंतखब होकर आएंगे तो यकीनन उनकी आवाज़ जो है वो काम बाला तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से डॉलर की जिस तरह से फ्लक्चुएशन है, रोजाना की बुनियाद पर डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यकीन बहुत सारे उसके रीजन है। लेकिन जो हम ये देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत के इक़दाम की वजह से और आर्मी चीफ ने यकीन जिस तरह से इक़दाम किए और फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और एक अच्छा तासुर इम्पैक्ट पड़ा तो वहाँ जरूर जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अभी भी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है कारोबार के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ मकामी इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो रॉ मटेरियल खाम माल अब बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं डॉलर की सूरत में, तो यकीनन डॉलर में फ्लक्चुएशन होती है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है कीमतों पर। तो यकीनन अब बात की जाए अगर दीगर ममालिक के साथ तो यकीनन फिर एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से वो अगर कम कीमत पे जो वो अशिया फराहम करेंगे और पाकिस्तान अगर दौर में शामिल नहीं हो पाएगा तो यकीनन यहाँ पर मुश्किलात पेश जरूर आएंगी और इन्हीं मुश्किलात के इदराक के लिए बिजनेस कम्युनिटी मुसलसल जो है वो आवाज़ उठाती हुई दिखाई देती है, कहती है कि गैस बिजली के टैरिफ में कमी होनी चाहिए। और हमने देखा भी कि कुछ दिनों कबल जो है कराची शहर की जितनी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज बनी, इस हवाले से एहतजाज भी किया गया, इंडस्ट्रीज को बंद भी रखा गया, एक रोज़ा एहतजाज हड़ताल की गई और ये हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उनके मसाइल को हल किया जाए। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध बलूचिस्तान की इंडस्ट्री ने भी उनका साथ दिया और हड़ताल में शामिल हुए। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके कुछ दिनों बाद जो है वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है जुबैर मोती बाला और फिर दीगर सनतकारों की क़यादत में उनकी एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से अनवारुल हक काकड़ से। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि सनतकारों के मसाइल को हल किया जाएगा, तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और यकीनन वो सनतकार बिजनेस कम्युनिटी यही चाहती है कि एक
मुंतखब लोग हुकूमत में आए ताकि उनके आवाज़ के मसाइल को हल किया जा सके। और जाहिर है कि FPCCI जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी नुमाइंदगी करती है, मुल्क की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है, तो उसका भी किरदार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यकीनन आज के इंतखाबात से एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी आवाज़ मज़ीद ताकतवर होगी और वो अपने आवाज़ और अपने मसाइल को FPCCI UBG के जरिए हुकूमत तक पहुँचाएंगे और ये दरख्वास्त की जाएगी और मुकम्मल तौर पर आवाज़ उठाई जाएगी कि उनके मसाइल को हल भी किया जाए और तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और हुकूमत के साथ और जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग हैं वो एक साथ बैठें और आवाम के मसाइल को हल करें, इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल को हल करें। तो यकीनन आज के इंतखाबात के बाद हम ये देखेंगे कि तमाम तर चीज़ें सामने भी आएंगी और जिस तरह से माजी में देखा गया कि UBG आज 4 साल कबल भी FPCCI की सदारत संभालती थी, उसके बाद हमने देखा कि BMP ग्रुप जो है वो सामने आया, उन्होंने भी यकीनन कहीं ना कहीं ज़रूर सनतकारों और इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल को हल किया। लेकिन जो UBG ग्रुप अब जो सामने आया 4 साल बाद, उन्होंने ज़रूर इस हवाले से इल्ज़ाम भी लगाए और कहा भी कि शायद BMP ग्रुप जो है वो सही तरह जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ नहीं उठा पा रहा और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम भी लगाए गए। तो ओवरऑल ये तमाम तर सूरत है जो हमने आपके सामने रखी, पूरा दिन कवरेज भी करते रहे, लोगों से बात भी करते रहे। तो यकीनन जो लोग चाहते थे कि UBG ग्रुप जो है वो जो उनके उम्मीदवार हैं वो नशस्तों पर कामयाब हो, उनको FPCCI की सदारत मिले ताकि वो मसाइल को इसके मसाइल को समझते भी है, जानते भी हैं और यकीनन फिर जो मामला और ग्राउंड रियलिटी को समझता है तो फिर यकीनन वो अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाता भी है और यकीनन फिर हुकूमत की जो ऐसे काबिल लोग होते हैं जो मसाइल को समझते हैं उनकी आवाज़ को सुनती भी है, उनको हल करने की कोशिश भी करती है। जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन। कराची प्रेस क्लब इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स पैनल का 14वीं मरतबा क्लीन स्वीप, सईद सरबाजी 845 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। सेक्रेटरी के ओहदे पर शुएब अहमद 843 वोट लेकर मुंतखब हो गए। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए 2024 दी डेमोक्रेटिक्स पैनल्स का 14वीं मरतबा क्लीन स्वीप। कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात दी डेमोक्रेटिक्स पैनल, आज़ाद पैनल और दी जर्नलिस्ट पैनल ने हिस्सा लिया। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई जो बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रही। इलेक्शन कमेटी के सरबराह डॉक्टर तौसीर अहमद प्रेस क्लब में नताइज का ऐलान किया। नताइज के मुताबिक सदर के ओहदे पर दी डेमोक्रेटिक्स पैनल के सईद सरबाजी 845 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब हुसैन ने 110 वोट हासिल किए, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे पर शुएब अहमद ने 843 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आरिफ खान ने सिर्फ 96 वोट हासिल किए। नायब सदर के ओहदे पर अब्दुल रशीद मेमन ने 758 वोट, खजान के ओहदे पर एहतशाम सईद कुरैशी ने 806 वोट और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मोहम्मद मुनसिफ ने 726 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। गवर्निंग बॉडी की 7 नशिस्तों पर शम्स कीरियो, मुना सिद्दीकी, शाजिया हसन, नवाब कुरैशी, शुएब अहमद, राना जावेद और नूर अहमद कलोड़ो कामयाब करार पाए और नूर मोहम्मद कलोड़ो साहब ने 588 वोट लिए और ये लोग कामयाब करार पाए। प्रेस क्लब के इंतखाबात में 1503 रजिस्ट्रार मेंबरान वोटर्स में 779 मेंबरान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। प्रेस क्लब के इंतखाबात के मौके पर गहमा गेबी देखने में आई और तीनों पैनल्स के उम्मीदवारों और इनके हामियों ने दिन भर में भरपूर अंदाज में अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट हासिल करने के लिए मुहिम जारी रखी। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। हाल 2023 के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 746 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बनाने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जारी होने वाली हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 746 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1.21% इजाफे से 62,451 की सतह पर बंद हुआ। दिसंबर में 100 इंडेक्स में 1920 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसलसल चौथे माह 100 इंडेक्स मुस्बत जोन में बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में जनवरी से जून के दौरान सरमायाकार शरह सूद में कमी देख रहे हैं। नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% रही। नवंबर में गाड़ियों की फरोख्त में 6% इजाफा देखा गया। करंट अकाउंट मुसलसल 6 माह खसारे के बाद नवंबर में सरप्लस रहा। नवंबर में
करंट अकाउंट 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो मुस्बत करार दिया गया। बराह रास्त सरमायाकारी नवंबर में 7% इजाफे से 13.10 करोड़ डॉलर रही। अशरफ खान, सिटी 21।